خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ 16 برس کی تھی۔ جی چاہتا ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہوں، خود کو دیکھوں اور شرماؤں، اپنے ہی عکس میں کھو جاؤں یا پھر تصور کے چمنزار میں اڑتی اڑتی کائنات کی خوبصورتی میں کہیں دور نکل جاؤں۔ لیکن اس کے پیار نے میرے پر باندھ رکھے تھے، میں اس کے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن ان دنوں میری جان مصیبت میں تھی۔ ریحان میرے ماموں کا بیٹا، جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اماں سے ملنے روز آتا لیکن کن اکھیوں سے میری طرف دیکھتا رہتا۔ سچ کہوں تو مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میر عالم بھی میرا کزن تھا۔ ریحان ننیال سے تو عالم ددھیال سے ہے، وہ بھی ایسے ہی آ کے اماں کے پاؤں دباتا لیکن نظریں اس کی میرا تعاقب کرتی۔ میری جان مصیبت میں تھی۔ دونوں ہی اچھے تھے، دونوں مجھے چاہتے تھے اور مجھ سے شادی کے طلبگار تھے۔ اماں مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کہ کس کو اپنا داماد منتخب کریں اور کس کو منع کر دیں۔ ریحان کے والدین زیادہ امیر نہ تھے لیکن ماں سے رشتہ تھا، تبھی ماں چاہتی تھیں کہ اسے داماد بنا لیں۔ میر عالم میرے والد کا بھتیجا تھا اور امیر باپ کا بیٹا تھا، ان کا وہ چہیتا بھی تھا۔ ان کے سگے بھائی کا نور چشم، خوبصورتی میں ریحان سے بڑھ کر، تعلیم میں بھی آگے۔ ایسا رشتہ کون ٹھکراتا ہے؟ میں دونوں سے چھپی رہتی، زیادہ بات نہ کرتی۔ جب ان میں سے کوئی آتا، میں کچن میں گھس جاتی۔ اماں بلاتی تو بھی سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ ایک دن دونوں کی مائیں رشتہ طلب کرنے آگئے۔ ریحان کی والدہ صبح کو آئیں تو تائی جی شام کو۔ ایسے موقعوں پر مائیں حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ میری ماں کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہوا۔ رات کو والد صاحب سے مشورہ لیا، وہ جھٹ سے بولے، ریحان کو انکار کر دو اور میر عالم کو قبول کر لو، وہ میرا بھتیجا ہے، میں بڑے بھائی کو کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ اماں جان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور دکھ سے آنسو نکل آئے۔ مجھے البتہ کوئی دکھ نہ تھا بلکہ والد کا فیصلہ اچھا لگا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی میر عالم کو مجھ سے زیادہ میرے والدین سے محبت تھی، وہ ان کو ایسے ہی چاہتا تھا جیسے اپنے والدین کو چاہتا تھا۔ ہمارے ماموں، تایا، چچا سب اسی شہر میں رہتے تھے۔ ماموں والے کماتے لیکن تایا چاچو روز آتے، اگر نہ آتے تو ہم چلے جاتے تھے۔ جس دن میری میر عالم سے ملاقات نہ ہوتی، لگتا سورج نکلا ہی نہیں۔ میری دوستی عالم کی بہن نیاز بی بی سے تھی، ہم اس کو نازو بلاتے۔ اس کی اور تائی کی بھی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں۔ ایک دن نازو کی زبانی پتہ چلا کہ میر عالم اپنی خالہ کے گھر کراچی جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گئی۔ 100 طرح کے اندیشے دامنگیر تھے۔ اس کی خالہ کی بیٹیاں تھیں اور میں نے سنا تھا کہ خالہ اسے داماد بنانا چاہتی ہے۔ میں نے بہت دعا کی کہ وہ کراچی نہ جائے۔ زبان سے کہہ نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ بے تکلفی نہ تھی، اس لیے روک بھی نہ سکی۔ وہ چلا گیا اور میں 100 اندیشے دل میں چھپائے سے سکتی رہ گئی۔ اب تائی کا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ نازو کہتی کہ اب تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ سے کیا بتاتی کہ کیوں نہیں آتی؟ میر عالم 1 ماہ کے لیے گیا تھا اور 3 ماہ لگا دیے۔ نازو بتاتی کہ بھائی وہاں بہت خوش ہے، اس کا دل لگ گیا ہے، تبھی لوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں یہ باتیں سنتی تو دل بیٹھ جاتا۔ اب ممانی اور ریحان کا افسردہ چہرہ یاد آتا جن کو ہم نے میر عالم کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، شاید ہمیں ان کے خلوص کو ٹھکرانے کی سزا ملی تھی۔ ادھر عالم اور اس کی خالہ زاد نیلم کے بارے ایک ہو جانے کی چمگوئیاں تایا کے گھر میں شروع ہو گئی تھیں۔ ادھر ممانی جان آخری بار ریحان کے لیے ہمارے گھر منت سماجت کرنے آ گئیں لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میر عالم ضرور آئے گا، وہ نیلم سے شادی نہیں کرے گا۔ اماں جان نے آخری بار مجھ سے پوچھا، بیٹی کیا خیال ہے؟ تمہاری ممانی کو ہاں کر دوں تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا کیونکہ میرے دل کو یقین تھا عالم ضرور آئے گا اور مجھ کو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخری بار انکار سن کر ممانی پھر نہیں آئیں بلکہ خفا ہو کر چلی گئیں اور اپنی بھانجی سے بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا۔ یوں ریحان اور ماں ہم ایک ہو گئے۔ اب ماموں ہماری طرف نہیں آتے تھے لہٰذا ہمیں علم نہ تھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان دنوں مجھے ان لوگوں کی پرواہ بھی نہیں تھی، میرے دل کے دھاگے تو تایا کے گھر سے بندھے ہوئے تھے۔ مجھ کو انتظار تھا تو اس کا جو کراچی جا کر وہاں کا ہو رہا تھا، اسے تو کسی کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ کراچی شہر نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ میرے ارمان میری سوچوں کے جال میں قید تھے، عالم کے سوا کسی اور بارے سوچ بھی نہ سکتی تھی۔
इससे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार यास्मीन आए। उसने बताया कि आलम ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया हुआ है और वहां बहुत खुश है। इसकी खाला हर सूरत इसको अपना दामाद देखना चाह रही है, तभी वो इसको पढ़ा रहे हैं ताकि बैरून मुल्क भिजवा सकें। ये सुनकर मेरी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए, हर आस दम तोड़ गई। बहुत रोई, इस कदर दुखी हो गई कि मर जाने के सिवा कोई और बात न सोचती थी। नाजो मुझे तसल्ली देती कि खातिर जमा रखो, मेरा भाई जरूर आएगा, वो शादी तुम ही से करेगा। मेरे पास नाजो की बातों पर यकीन करने के सिवा कोई चारा न था। मैंने खुद तो कभी मीर आलम से बात न की थी, हमने कभी इकरार मोहब्बत न किया था, तो अब मैं नियाज बीबी की बातों पर एतबार के सिवा कर भी किया सकती थी। अम्मा और बाबा जान इस इंतजार में थे कि ताया और ताई आकर रिश्ते की बात कच्ची करें, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिश्ते के मामले पर बात न की। शायद वो भी उसका इंतजार कर रहे थे। 6 माह बाद सुना कि मीर आलम आ गया है। मैं उसकी एक झलक देखने को बेताब थी। लगता था कि वो कराची से आते ही हमारे घर आएगा, मुझे पहले की तरह कुन अखियों से देखेगा और कहेगा, आज किसी ने हमें चाय का भी नहीं पूछा। ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो हमारे घर आया और ना ही उसने मुझे कुन अखियों से देखा। मैंने सुना वो हमारी तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। मैंने ये भी सुना कि वो कहता है कराची अच्छा शहर है और अब मैं कराची में ही रहूंगा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। वो ना आया और मेरी उम्मीदों का ताजमहल ढह गया। रोज आने वाला जब यूं अपने दीदार से महरूम कर दे तो चाहने वाले के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो इंतजार की आग में जलने वाले ही बता सकते हैं। मैं बहाने से यास्मीन के घर गई। उसका घर नाजो के घर से मिला हुआ था। सोचा वहां से छत पर जाके देखूं, शायद वो नजर आ जाए। यास्मीन ने समझ लिया था मैं क्यों आई हूं। वो मुझे अपनी छत पर ले गई। तकदीर मेहरबान थी या हसन इत्तेफाक के मुझे सामने ही वो नजर आ गया। वो भी अपनी छत पर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये सर्दियों के दिन थे। अचानक उसकी नजर मेरी जानिब उठ गई। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे इसमें कोई तब्दीली नजर न आई, सिवाय इसके कि उसकी सेहत काबिल रश्क हद तक अच्छी हो गई थी। मुझे देखकर हाथ हिलाया। मतलब था कि मैं आजकल मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, अभी मसरूफ हूं। खुदा की शान, जिसको एक रोज काटना भी मुहाल लगता था, वो अब इतना मसरूफ था कि अपने चचा के घर आने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। मैं इसके इस तर्स अमल को क्या समझती। मैं खुश थी मगर नाखुश भी थी। बोझल कदमों से घर आ गई। जो काम करती गुमसम हो जाती, काम करना भूल जाती थी। सोचती थी ये सब क्या है। अब वो बदल गया है। उसका तर्ज अमल अजीब हो गया था। इस बात की तह में कोई बात तो पोशीदा थी। अगले दिन वो हमारे घर आया। मुझे देखकर इशारे से सलाम किया। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया था। वो हसब मामूल अम्मा जान के सामने बैठ गया। मैं किचन में इसके लिए चाय बनाने चली गई। सोचने लगी, हम मशरकी लड़कियां भी कैसी भोली होती हैं, किसी से कुछ कह सुन भी नहीं सकती। जिसको दिल का मालिक बनाया था, काश इससे एक सवाल कर लेती कि आलम सच सच बता दो, क्या तुम मुझसे शादी कर रहे हो। अम्मा से बातें करके वो चला गया। उसने मुझसे कुछ कहा ना सुना। मैं भी इससे कुछ न जान सकी कि इसके दिल में किया है। चंद दिन रहकर वो कराची वापस चला गया, क्योंकि उसे कोर्स मुकम्मल करना था। जाते हुए भी वो मुझे खुदा हाफिज कह कर न गया। कैसे कहता, हमारे खानदान में रिवाज ही न था। इस बार तो ऐसा लगा जैसे वो मेरा सब कुछ ही मुझसे छीन कर ले गया है। मेरा दिल खाली हो गया था। अम्मा बाबा को भी अंदाजा हो गया कि इसके वालिदैन ने रिश्ते के लिए सरसरी पूछा था, कोई वाज़ेह बात नहीं की थी। गोया उनका ख्याल बदल गया था, वरना कोई तसल्ली आमेज बात तो करते। यकीनन वो नीलम को बहू बनाने बारे सोच रहे थे। नाजो ने एक दिन बताया कि इसके वालिदैन कराची जा रहे हैं। खाला ने बुलाया है, वो नीलम का रिश्ता तय करना चाहती है। अगर मेरी माँ को नीलम पसंद आ गई तो वो इसका रिश्ता मीर आलम से कर देंगी। ये खबर क़यामत थी जो मुझ पर गुजर गई। इस दिन में बिल्कुल मायूस हो गई। इस बात की भनक अम्मा जान के कान में पड़ी तो वो भी अफसोस करने लगी कि ये कैसी भूल हमसे हो गई। ये काश कि मैं हुमा का रिश्ता अपने भांजे रेहान को दे देती तो आज इस तरह लेने के देने ना पड़ते। अब तो वो भी हाथ से गया और आलम भी हाथ न आया। अम्मा बीमार पड़ गईं। वो पीली जर्द होती गईं जैसे ये गम उनका कलेजा खा लेगा। कभी लौटी हुई खुशी वापस मिल जाती है
और वो मुराद बराती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्हीं दिनों जब मीर आलम कराची चला गया और अम्मा मायूसी के घटाटोप अंधेरे में डूबी हुई थीं, अचानक उम्मीद की किरण जागी। किसी ने इत्तला दी कि रेहान का बीवी से झगड़ा हो गया है और वो रूठ कर मैके चली गई है। सास ससुर मनाने गए लेकिन इन लोगों ने तलाक का मुतालबा कर दिया। इन दिनों रेहान की बीवी एक बेटे की मां बन चुकी थी। उसने मजबूर होकर बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने बेटा भी रेहान को दे दिया और उनका घर छोड़कर चली गई। अब रेहान को अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो बच्चे को मां का प्यार दे सके। रेहान को मुझ पर एतमाद था कि मैं ही वो हस्ती हो सकती थी जो उसके बच्चे को मां का प्यार दे सकती थी। मामू और मुमानी की भी देरीना ख्वाहिश थी मुझे बहू बनाने की। वो एक बार फिर हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आ गए। इस बार अम्मा जान ने अपने भाई को लौटाना मुनासिब ख्याल न किया और मेरी मंगनी रेहान से कर दी गई। मैंने कोई एहतजाज न किया। इन दिनों मेरी हालत बदतर थी। जिसके लिए जी रही थी इसने मेरी खबर तक न ली। इस बार अम्मा की बात को न ठुकरा सकी। अम्मा ने रिश्ते के मामले को बहुत राज में रखा। सी रिश्तेदार को कानो कान खबर न होने दी। इन दिनों नाजो मेरी वाहिद गमगुसार थी। इससे गम बांटती। वो मुझे गिले लगाती, मेरे आंसू साफ करती, मगर वो बेचारी किया कर सकती थी। यास्मीन भी मेरी हमराज थी और मेरा दुख सुनकर रो देती थी। सहेलियां बड़ी दौलत होती हैं, खास तौर पर जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो तो दोस्तों का सहारा नेमत होता है। वालिदैन के सामने जबान खोलना मेरे बस में नहीं था। सिर्फ अम्मा जान से कहती थी, अपने मेरा रिश्ता इतनी जल्द क्यों तय कर दिया? कुछ तो और सब्र कर लिया होता। हम तेरे भले की सोचते हैं, अम्मा जवाब देती थी। रेहान अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार करता है, तुम मामू की बहू बनकर सुखी रहोगी। 1 साल बाद मीर आलम वापस चला आया। आते ही वो खुश खुश हमारे घर आया। अम्मा के इसी तरह पांव छुए और मुझसे चाय की फरमाइश की, लेकिन यहां तो 1 साल में 1 सदी बदल चुकी थी। मां ने इसे बताया कि मैंने हुमा की मंगनी रेहान से कर दी है। ये खबर सुनते ही इसका रंग उड़ गया और हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? गोया अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो बगैर चाय पिए उठकर चला गया जैसे किसी ने इसको उसके बहुत प्यारे की मौत की खबर दे दी हो। इसके वहम गुमान में ना था। अम्मा ऐसी बात कहेंगी, अपनी दानिस्त में तो वो मुझे अपना समझ चुका था। इसके वालिदैन भी आए मगर अम्मा ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी। मैंने तो अब जबान दे दी है। मैं अपने भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगी? मीर आलम इन दिनों उजड़ा उजड़ा लगता था। ये वही था जो हमा वक्त हंसता मुस्कुराता रहा करता था। अब तो अपनी हालत मजनू ऐसी बना ली थी। वो अक्सर बिला मकसद अपनी छत पर टहलता रहता। एक रोज में छत पर गई तो वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ था। किस कदर बदहाल और उदास था। उसने कई दिनों से लिबास तब्दील न किया था। जब निगाह मुझ पर पड़ी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। मेरी मंगनी के बाद से ताया और ताई ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। वो इस रिश्ते से खफा थे। अब तो मीर आलम से मुलाकात करना भी मुहाल था। मुलाकात तो कुजा, उसकी एक झलक देखना भी जुर्म था। एक दिन यास्मीन आई। मिन्नत समाजत से मुझे अपने घर ले गई और ताई के हाथ चलने को कहा। मैं डरते डरते गई। ताई ने गिले लगाया और बहुत रोई कि हमसे कोताही हो गई। हम तो समझते थे कि तुम हमारी हो और ये रिश्ता पक्का है। जब हम मुंह से कहेंगे तो इनकार ना होगा। हमें क्या खबर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी पड़ जाएगी। हमको खबर तक ना लगने दी, वरना हम पहले ही रिश्ता पक्का कर लेते। ताई जी की बात सुनकर मैं भी अपने दुख को काबू ना कर सकी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद मीर आलम आ गया। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था कि क्या बात करूं। मैं तो बस रोए जा रही थी। वो भी चुप था मगर उसकी आंखें बह रही थीं। उसने कहा, हुमा तुम शादी से इनकार कर दो, मगर अब मेरे लिए ऐसा मुमकिन न था। मैं चाहते हुए भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना अब उनको शर्मिंदा कर सकती थी। मैं रोती हुई वापस घर आ गई। अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर। शादी के दिन जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानती थी। ताया वाले मेरी शादी में नहीं आए, मेरे ननियाली रिश्तेदार ज्यादा आए। मैं रेहान की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई और वो तमाम ख्वाब जो मैंने मीर आलम के साथ देखे थे चिकनाचूर हो गए। पूरे घर में ऐसा माहौल था जैसे शादी नहीं
किसी की मौत हो गई हो। हर कोई आंसू बहा रहा था। यूं लगता था जैसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हूं और मीर आलम जाने किस तरह मेरी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर रहा था। यूं दो मोहब्बत करने वाले चुपचाप और किसी से शकवा किए बगैर जुदाई की सूली पर चढ़ गए। आज भी उसकी याद दिल पर सख्त है। अगरचा घर में शरीफाना जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन मीर आलम की याद आ जाती है तो दिल बंद होने लगता है। खुदा जाने वालिदैन क्यों रिश्ते तय करते हुए गफलत से काम लेते हैं और मासूम दिलों का खून हो जाता है। मीर आलम दिल बर्दाश्ता होकर बैरून मुल्क चला गया और वापस ना आया। ये अच्छा हुआ कि वो वापस ना आया, वरना मेरी घरेलू जिंदगी वीरान हो सकती थी और मैं परेशानी की लहरों में बहती बहती मामूलात जिंदगी के धारों से कहीं दूर निकल जाती तो क्या होता। मेरे बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो जाता। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।